Hello students, this is Gaurav Kumar and we are studying circles in our online classes. Okay, so बच्चों today we shall discuss some questions of this chapter, that is exercise 10.2. First question I took, पहला क्वेश्चन हम हमेशा करते हैं, आसान होता है and it make a base of the chapter of the exercise. Okay, so first question क्या है? First we shall go through it. From a point Q, this is Q, the length of the tangent to the circle is 24 सेंटीमीटर. देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है, एंड इट इज गिवन 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, इस पॉइंट Q की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैंने एज्यूम कर लिया है O इज 25 सेंटीमीटर. ये हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, रेडियस सर्किल की क्या होगी? ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन है. तो 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर, इनमें से कोई एक हमारा आंसर है. बच्चों मैथ्स में एक बात यू मस्ट रिमेंबर कि भले ही क्वेश्चन एमसीक्यू है बट वी हैव टू परफॉर्म सम calculations, we have to perform, we have to use concepts, even then we can find the correct answer. कभी भी तुक्का ना मारे. अगर कैलकुलेशन you don't want to do the calculation, you don't want to perform the calculation on paper, do it in your mind, but always use concept and calculation, then reach to the correct answer. If you directly using the fluke मैथ्स में काम नहीं करता है, तुक्का जिसे हम बोलते हैं वो काम नहीं करता है. तो here we shall perform concept and calculation as well. So what is the concept? हमने एक बात देखी थी 10.1 थ्योरम में कि टेंजेंट को कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P is the common point to the tangent and the circle as well, and it is known as point of contact. इसे हम point of contact बोलते हैं. When this point of contact is joined to the center, it makes a radius. OP is the radius, and we have to find the radius. Okay, and this radius makes a right angle. ये हमने 10.1 थ्योरम में किया था. किस थ्योरम में किया था? 10.1 थ्योरम में. ठीक है, when it is a right angle, so OPQ or जो भी whatsoever the name of this triangle is a right triangle. So I can say the triangle OPQ is a right angled triangle. इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ मेरा एक यही उद्देश्य है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, एंड इन a right angle triangle when we are given two sides, third side we can find using PGT. So using PGT or applying PGT in triangle OPQ, we get what? We get the side against the right angle is known as hypotenuse. So OQ square is equal to the OP square plus PQ square. You know that the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides of the right angle triangle. Okay, so OQ square you get 25 square and OP square, that is the radius of this circle, we have to find it, and PQ square is equal to 24 square. Again I am going to use, I don't want to find the square of these two numbers 25 square and 24. I will directly use one identity, that is 25 square minus 24 square. You can use the identity a square minus b square here to find the value of OP square. It gives 25 minus 24 into 25 plus 24. देखो चीजों को यूज करना हमें आना चाहिए, यही मैं बार बार कहता हूँ. These
आर द शॉर्ट ट्रिक्स, यही शॉर्ट ट्रिक्स हमारी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। आपके पास दो तरीके हैं, 25 स्क्वायर निकालें, 24 स्क्वायर निकालें, हमें याद होने चाहिए, डोंट से कि you don't have to remember squares of the numbers, but here without finding the squares of the number directly we can use an identity, that is a square minus b square, to find the value of op square. So again op square is equal to 25 minus 24, that is 1, 25 plus 24, that is 49. So op is equal to 7. So op is equal to आएगा 7 centimeter. Here we don't have to take negative sign because op is the distance and distance can never be negative. So op is 7 centimeters. So our correct answer is 7 centimeter. This calculation is required. You have to perform this calculation to reach the correct answer. Don't use fluke. Fluke use करना नहीं है. Otherwise it may be wrong. सही भी हो सकता है लेकिन गलत होने के चांसेस भी रहते हैं. कितने गलत होने के चांसेस हैं? Again I am using mathematics here because 3 options are incorrect. So 3 options are incorrect. So 3/4 is the probability that you use incorrect option. 3/4 gives 75%. यानी कि 75% चांसेस हैं कि आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा. तो I don't say, never use तुक्का, never use fluke. ओके बच्चों, तो हमें क्वेश्चन को करना आना चाहिए. तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है? आप इसे लिखें. तो आइए बच्चों, हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आई विल ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. एक बात ध्यान रखें बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 10.2 है इस चैप्टर की, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इस एक्सरसाइज में से डेफिनेटली यू विल गेट 2 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. ओके, सो ऑल क्वेश्चंस वी हैव टू डू. एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है. जो हमने थ्योरम किए हैं, थ्योरम 10.2, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दैट थ्योरम. So the application of this theorem you can see here. अब इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं. If TP and TQ are two tangents to a circle, फिगर में दी हुई है, TP है और TQ है, तो tangents होती हैं. एक्सटर्नल पॉइंट P है, हमने जियोजेब्रा जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमने उसमें भी देखा था. From an external point, two tangents can be drawn. So from the point T, that is external point of circle with center O, so TP and TQ are two tangents from T. तो कुछ भी गलत नहीं है. So that POQ, where is POQ? POQ, this angle आपको given है 110, and we are asked to find angle PTQ. PTQ हमें निकालना है. फिर again it is an MCQ type question. So अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो क्या होगा? POQT एज क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल है ये, लेकिन हमें O दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो हमने 10.2 जो थ्योरम की थी उसमें हमने O को T से मिलाया था, O को हमने T से मिलाया था, एंड दिस कंस्ट्रक्शन divided this quadrilateral POQT say in two triangles and these triangles were congruent. वो ट्राइंगल दोनों क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे. कॉन्ग्रुएंट थे तो ये मान लिया ऐसे करने से जो हमारे पास आता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर होगा बाय CPCT. तो ये 55 आ जाएगा, ये भी 55. इससे मैं करूँगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम कई तरीके से, आई ऑलवेज से, in geometry we can use many ways, many methods to solve same question, solve the same question. Okay, तो अगर हम उसे भी लगाते हैं तो 55 आ गया, ये 55, and we know that it is 90 डिग्री राइट एंगल है, और ये भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है. 90 डिग्री 55, तो ये कितना हो जाएगा? 90 में से हमारे कितने चले जाएंगे? 55 चले जाएंगे. उतना ही आएगा CPCT से. लेकिन हम इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें? मैंने ये भी डिस्कस कर दिया, लेकिन हम कैसे करेंगे? POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल. POQT क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. तो सिंपली वी कैन से एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल,
states what P plus Q, मैं सिंपल लिख रहा हूँ उसको P plus Q plus एंगल O plus एंगल T is equal to 360 होता है. P we know 90 and Q is also 90. O is given 110. T we have to find, that is 360. ये हो जाएगा 180, 110 again T is equal to 360. So what it is uh, 290 plus T is equal to 360. So angle T becomes 360 minus 290, which gives 70 degree. So angle T कितना हो जाएगा हमारा 70 degree. B is the correct option. अब हमें यहाँ पर कुछ देखने की आवश्यकता है क्या? नहीं. ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने ये कि हमने सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस किया. तो आप इस तरह से हम ये मतलब दो तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया यहीं पे, तो कोई दिक्कत नहीं है. दो तरीके से हो जाता है आराम से, कोई ऐसी बात नहीं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं फटाफट, फिर हम आज का अपना टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं. ठीक है, लिखा आप इसको. हाँ, एक बात बतानी छूट गई थी, ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल जो T आया है वो 70 डिग्री आया है और O जो आया है वो कितना है, वो था 110. तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है इस बात पर कि O प्लस एंगल T जो होता है वो 180 होता है. तो यहाँ तो मैंने इस क्वेश्चन को देखो तीसरा तरीका डेवलप हो गया. यही बात करते करते हमारा तीसरा तरीका डेवलप हो गया. हमने एक तो राइट एंगल ट्राइंगल से इसको किया जैसे यूजिंग थ्योरम 10.2. दूसरा हमने क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से यहाँ पे सॉल्व किया. इस सॉल्यूशन से एक तीसरा मेथड निकल कर आया है, इसे नोट में आप लिखोगे. तो क्या निकल कर आया है कि जो ये अपोजिट एंगल है सेंटर पर बनने वाला एंगल बाय टेंजेंट्स, और टेंजेंट जो एंगल बनाती है खुद, उन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है. इट मींस दे आर सप्लीमेंट्री. एंगल एट द टेंजेंट बाय द एंगल एट द सेंटर बाय द टेंजेंट्स एंड एंगल मेड बाय द टेंजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा सो वी शैल यूज दिस कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, वी कैन यूज इट, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया. तो बच्चों ये ट्रिक्स हमें सीखनी होती है, ये हमारी ट्रिक्स है. अगर हम बार बार क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे तो इट विल टेक टाइम. जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड क्रैक द क्वेश्चन. ओके, तो बच्चों देखते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O सेंटर का जो सर्किल है, आर इंक्लाइंड का मतलब हुआ है ये इनके बीच का एंगल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, कितना है 80 डिग्री है, ये हमें 80 डिग्री गिवन है. देन POA ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, इज इक्वल टू ऑप्शन है A 50, B 60, C 70 एंड D 80. अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें मैंने बाद में एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी, उसका यूज करके हम विदाउट एनी कैलकुलेशन इसका जवाब दे सकते हैं. ठीक है ना, कैसे, क्या बताया था मैंने बताया था एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल एट द सेंटर, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180. सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू होगा 180. ये मैंने आपको बताया था. अब आपको कोई क्वाड्रिलेटरल या किसी भी तरह के यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यू कैन यूज दिस. ओके, सो APB कितना है हमारा 80 है, और एंगल AOB इज इक्वल टू है 180. सो इट गिव्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80
दैट इज 100। तो ए ओ बी हमारा आ गया कितना, ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है बच्चों। और थ्योरम 10.2 states that these two triangles divided by the line segment OP are congruent, so angle AOP is equal to angle BOP। AOP और BOP क्या है, आपस में बराबर हैं, एंड AOB हमारा कितना आ गया है, 100 आ गया है। तो वी कैन से दैट एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 100, और ये दोनों बराबर हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल POA, जिसे हम AOP कहते हैं, इज इक्वल टू 100 एंड POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, ए इज आवर करेक्ट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। ये थोड़ा मैंने वक्त लिया टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, टू एक्सप्लेन द थिंग्स व्हाट वी आर यूजिंग। बट अगर एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, so you can calculate this question in your mind and you can opt the correct answer, I think. So बच्चों, हमने देखा कि हमने एक दूसरे से लिंक क्वेश्चन किए हैं, और मैंने बताया है कि दिस एक्सरसाइज, द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। हम सब करेंगे, आप लोग करेंगे। अब आपको 3 तक मैंने करा दी है, 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना, ठीक है, 6 को। उसके बाद आगे फिर हम बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।